Hello everyone. In my previous class, I have taught about what is training, and in this class, I will be continuing with the training and just moving to the next part of development. Development means it is a learning opportunity for the managers. It is a learning opportunity for managers. Just look at this. It is a learning opportunity. Means it is something that is making an effort to the employees of the organization is to make them something learn and just gain new skill. New skills for managers. It is learning opportunity for the managers. It's getting new skills for the managers, and it improves, or you can say updates, managerial people skill and intellectual skill also. As world is moving very fast, there are new things happening all over the world. So a manager needs to get himself updated, because whatever is happening around the world, what the new technology is coming, a manager needs to be updated very accordingly to that. So the role of the senior manager in that organization plays a very important role. Senior manager need to just look to the entire organization, and he should feel that who all are the managers who need a good development coaching, so that he can get updated. So the question arises, what is the need for this development? It improves the performance of managers, helps them in creative thinking, it is basically a learning opportunity for the managers, and it garners new skills for the managers. It improves managerial people skill and intellectual skills. It improves the performance of the managers. It helps them in creative thinking. So all these are the objectives why development is given to the managers, and it is a planned change. Planned change means it is planned in the department that who are the managers who have the executive talent in them, and just make them something so that they can be just trained for the succession planning also. So executive development is very necessary. So there are types of managerial development. Methods of managerial development. First method is on the job, and other is off the job. In the on the job means development is given on the actual site, means at their actual workplace. तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका कोचिंग, सेकेंड है आपका जॉब रोटेशन,
फिर आता है अंडर स्टडी, फिर आता है मल्टीपल मैनेजमेंट, फिर आइए ऑफ द जॉब में, इसमें आएगा आपका सिमुलेशन एक्सरसाइज, लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, तो इधर ध्यान दीजिएगा, कोचिंग में होता है कि जो एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय होते हैं जो हायर अथॉरिटीज में रहते हैं, वो अपने अंदर ग्रुप ऑफ मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं कि क्या क्या नीड है और आगे क्या क्या चैलेंजेस है, और किसी में वो एग्जीक्यूटिव टैलेंट परखते हैं कि ये टैलेंट है इसमें, इसको भविष्य में इसको मैनेजर का और हायर पोस्ट दिया जा सकता है, इसको हम लोग सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। कोचिंग हो गया एक। जॉब रोटेशन मीन्स क्या होता है कि एम्प्लॉयज को ऐसा उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए या कि वो हर एक डिपार्टमेंट में क्रॉस फंक्शनल जो उसमें वर्क है वो सब कुछ कर सके। जैसे कि मैनेजर्स हैं आपके किसी एक डिपार्टमेंट के आईटी सेल के, बट कभी जरूरत पड़ा तो वो जाके मार्केटिंग भी संभाल सके। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग दिया जाता है कि एक डिपार्टमेंट के हैं तो उनको दूसरे डिपार्टमेंट का भी ट्रेनिंग दिया जाए, सो दैट इफ मैनेजर किसी के डिपार्टमेंट के एब्सेंट रहे तो वो काम हैम्पर ना हो। सी क्रॉस फंक्शनल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सब में कुछ कुछ 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग दी जाती है, ये काम कभी रुके नहीं। तीसरा है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी मीन्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मैनेजर्स में एक मैनेजर्स 2 मैनेजर्स को वो लोग स्पॉट करते हैं, देखते हैं कि इसमें टैलेंट है अलग से एग्जीक्यूटिव टैलेंट, और उसको वो लोग ग्रूम करते हैं। ग्रूम मतलब तैयार करते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी का बड़ा पोस्ट ले सकता है, उसी हिसाब से उसको सारा काम करवाते हैं। और मैंने काम करते करते समझ में आ जाता है कि कौन आदमी में फ्यूचर मतलब कि जगह लेने का क्षमता है। चौथा आता है मल्टीपल मैनेजमेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट से क्या होता है, इसमें से ग्रुप ऑफ मैनेजर्स को हर एक अपने बोर्ड मीटिंग्स, हर एक जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंसेस में गए हर जगह एक अपने जूनियर एम्प्लॉय को अपने साथ ले जाना, हर एक मीटिंग्स में साथ में रखना, हर एक असाइनमेंट्स में साथ रखना, कि वो धीरे धीरे हर काम सीख सके कि कहाँ पर कहाँ मीटिंग में क्या बोलना होता है, उसको भी एकदम ग्रूम करना, उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल मैनेजमेंट। ठीक है, ऑन द जॉब में क्लियर होना चाहिए। कोचिंग में क्या होता है, एक सीनियर एम्प्लॉय होते हैं अपने अंडर में, वो सबको कोचिंग देते हैं कि कैसे कैसे काम करना है और हमेशा अप टू डेट करते हैं, कोच करते हैं एज ए कोच। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय को जैसे कि एक डिपार्टमेंट में है, उनको दूसरे डिपार्टमेंट का भी नॉलेज देना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो उस डिपार्टमेंट में तो जाके वो उस डिपार्टमेंट में काम कर सके। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं कि जैसे कि अपने डिपार्टमेंट का नॉलेज है ही है, दूसरे डिपार्टमेंट का भी नॉलेज उनको होना चाहिए। तीसरा है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी में क्या होता है कि जो बॉस होते हैं, जो कंपनी के सीईओ होते हैं, चाहे टॉप मोस्ट, वो देखते हैं कि कौन एम्प्लॉय में फ्यूचर में वो जगह लेने का क्षमता है और उसी एम्प्लॉय को चुनते हैं और उसको उसी हिसाब से ट्रेन करते हैं कि उसको फ्यूचर में वो जगह ले सके। चौथा है मल्टीपल मैनेजमेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट मीन्स कुछ एम्प्लॉय को हर एक अपने बोर्ड मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, अपने साथ टूर में ले जाना, उनको बताना कि कैसे कैसे डील होता है, उसको उसी हिसाब से ट्रेन करने कि वो फ्यूचर में काम आ सके। तो ये ऑन द जॉब हुआ 4। अब आते हैं हम लोग ऑफ द जॉब में। ऑफ द जॉब मतलब कि एक्चुअल जो प्लेस है ट्रेनिंग का या डेवलपमेंट का, उससे हटकर सिमुलेशन एक्सरसाइजेज मीन्स क्या होता है कि एक्चुअल वर्क जैसा दिखेगा कि वो दम ऐसा ही है, बट एक्चुअल वो होता नहीं ऐसा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल दिए थे कि अंतरिक्ष जो देखते हैं हम लोग, उसको बहुत जगह हम लोग को तारामंडल के रूप में दिखाया जाता है कि देखिए ऐसा होता है। उसी तरह बहुत सारे शोरूम में जाइएगा तो कार में बैठिएगा, एकदम लगेगा कि एक्चुअल कार चला रहे हैं। सिमुलेशन होता है कि एक्चुअल जैसा ही उसी इन्वायरमेंट में कंट्रोल्ड किसी के द्वारा है वो काम, जैसे रोबोट्स हो गए, वो एकदम सिमुलेटेड है, आदमी के जैसे ही दिखते हैं। तो सिमुलेशन एक्सरसाइज ऑफ द जॉब में क्या करेगा, जैसे कि बॉस कैसे एक्ट करते हैं आते हैं, तो उनका रोल प्ले करना कि किस तरह से बॉस हैं वो, मतलब
आए उनका नकल करना और सबको बताना कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये हो गया। फिर इसमें आता है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। फिर इसमें आता है आपका इन बास्केट। ये सब आपका सिमुलेशन एक्सरसाइजेज है जिसमें एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को एक कंट्रोल्ड वे में दिखाना कि कैसे काम होता है। इन बास्केट्स में क्या होता है कि मेमोज रहते हैं, मीटिंग्स रहते हैं, उसमें से निकाल कर उसमें देखना होता है कि कैसा कौन सा वे में क्या यूज होगा। और वेस्टिब्यूल इज अ टाइप ऑफ सिमुलेशन एक्सरसाइज, मतलब कि ये ऑफ द जॉब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिमुलेशन का। अब आते हैं हम लोग लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का। लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस क्या होता है कि कोई ऑफ द जॉब में कुछ लेक्चर्स दे रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस ले रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ को बताना होता है कि कौन चीज़ क्या कैसे चलता है और किस तरह से डे टू डे एक्टिविटीज़ में ऑडियो विजुअल के माध्यम से या एक्सपीरियंस के मामले में उन लोगों को बताया जाता है। कॉन्फ्रेंसेस हुआ जैसे कि एक ही टॉपिक के लेकर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना अपना ज्ञान देते हैं और अपना क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस। और लास्ट में है आपका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में क्या होता है कि 10 से 15 एम्प्लॉयज़ एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में मिलते हैं और एक कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक डिस्कस करते हैं और अपने एक दूसरे के बारे में फीडबैक देते हैं और एक लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं। और मतलब ये अनस्ट्रक्चर्ड मतलब है और इससे एक कंक्लूजन निकालकर आपस में देखते हैं कि किसका क्या डेवलपमेंट है, किसका क्या डेवलपमेंट है, सबका बारी बारी से बताते हैं कि ये आदमी इस 10 में इतना आया, फिर अपने आप के बारे में बताते हैं कि वो कैसे रहे। तो ये ऑन द जॉब और ये ऑफ द जॉब हुआ। सो आई होप दैट इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्यूरी डाल सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू।